welcome to Clat Point. Now we will look at this week's important cases from September 5th to September 11th. Now we have our Achievers batch for CLAT PG 2023, which will help you prepare and excel in your CLAT exam, as there are more than 50 mock test series which will make you very thorough with your preparation. You have one-on-one conversation with your mentor who are available for you 24/7 to solve any problem which you are facing while preparing your CLAT exam. Then you get study materials which are extremely good, and they have been made for the very purpose that the studying is made easy for you, and it's quick and it's smart. Also, you can access your course from anywhere at any time, because you not only have your online classes which are live, but also online recorded classes which you can hear anytime. Now let's look at the first case for this week. So, State of Jharkhand versus Salahuddin Khan. The bench was of Justice Suryakant and Justice Pardiwala. Now, in this case, what happened was that there was this accused who had picked up forcefully two minor girls and had gang raped them. What happened was that they filed bail, right? They filed for bail in Jharkhand High Court, and there they were released. Now, what was the reason why they were released? So, one of the grounds was that they were ready to deposit an interim compensation of 1 lakh rupees in favor of the victim, right? So that was the ground on which they were being given the bail. Now, this particular order of Jharkhand High Court, this was challenged by the state in Supreme Court. And this is what the Supreme Court said on the particular issue. The court said that in our considered opinion, the High Court has not adverted to the parameters of Section 439 CRPC, which are required to be observed while granting or declining regular bail to an accused, especially when he is involved in a heinous crime. So what did the court say? जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब इस चीज़ की अपील गई, जो झारखंड हाई कोर्ट ने बेल दी थी उसके अगेंस्ट अपील गई कि जस्ट बिकॉज कोई एड इंटरिम कॉम्पनसेशन देने को तैयार है तो क्या उसे बेल मिल जानी चाहिए. तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो पैरामीटर है, ये जो ग्राउंड है, ये सेक्शन 439 CRPC जिसमें रेगुलर बेल दी जाती है बाय सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये उसके अगेंस्ट है. उसमें ये कोई ग्राउंड ही नहीं है कि अगर कोई कॉम्पनसेशन देने को तैयार है तो आप उसको छोड़ दो. Because if you really look at it, this is something that if you have the money, you can get the bail. If you don't have the money, you further do not get the bail, right? So the court said further that the offer of payment of ad interim compensation to the victim cannot be a ground to release the accused on bail. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता है. एड इंटरिम कॉम्पनसेशन अक्यूज्ड देने को तैयार है, ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ कि उसको छोड़ दिया जाए और उसको बेल दे दी जाए. सो द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली क्वॉश्ड दिस पर्टिकुलर order of Jharkhand High Court. Now the next case is Shamshad versus State of UP. This is a judgment by Allahabad High Court. Now this is a typically criminal law case, and I would really recommend that you people go through the whole facts and whole judgments very thoroughly, because you will get the feel of a real criminal law case. Now the bench was of Justice Suneet Kumar and Justice Jyotna Sharma. The facts of the case, now they are really interesting facts. There was this person, right, the accused. अब उस accused ने क्या किया था, that he had murdered his stepmother and 3 step siblings. अपनी स्टेप मदर और 3 स्टेप सिबलिंग्स का मर्डर किया था. उस वक्त द फादर वॉज नॉट एट होम. अब उसने मर्डर किया घर के अंदर और वो भागता हुआ घर के बाहर निकला विद कुल्हाड़ी, एक्स, जो कि मर्डर वेपन है केस का. अब व्हेन द फादर केम होम, ही सॉ कि इतनी भीड़ है, और फिर लोगों ने बताया, जो आसपास के लोग थे, द बाय स्टैंडर्ड्स, कि उन लोगों ने अक्यूज को, उनके उस बेटे को देखा है कुल्हाड़ी लेके भागते हुए, एक्स लेके, एंड ही इज़ रनिंग अवे, एंड वो जो एक्स थी उससे खून टपक रहा था.
सो ऑब्वियसली एवरीबडी कुड गेस कि ये मर्डर वेपन है मोस्ट लाइकली। अब क्या हुआ कि अक्यूज्ड ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये जो एक्स है ये पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी बिहाइंड सम पर्टिकुलर बुशेस। अब वो जो प्लेस थी जहाँ उसने बताया कि वो कहाँ मिलेगी एक्स, वो जो प्लेस ऑफ क्राइम है यानी कि वो जो हाउस है उससे दूर था, और वो जो एक्स थी अगेन उसमें ब्लड था, राइट। तो इस बारे में बात करते हुए ये जो पूरा सिनेरियो था, बिकॉज जो अक्यूज था उसी ने बताया कि मर्डर वेपन कहाँ है। नाउ आइडली व्हाट इज द सिचुएशन कि सेक्शन 25 सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि अगर इंसान कोई भी अक्यूज कस्टडी में है, और एनी पर्सन इफ ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस, तो वो अगर कोई भी बात कहते हैं उस वक्त, तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है। सॉरी, रेलेवेंट हो सकती है लेकिन एडमिसिबल नहीं है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई इंसान पुलिस कस्टडी में है और वो कोई अपना स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, राइट। दैट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल विच सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट गिव। इसका एक एक्सेप्शन बनता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें क्या है कि अगर वो जो अक्यूज है जो पुलिस कस्टडी में है और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट में कोई इस तरह का फैक्ट आता है जहाँ से कोई रिकवरी होती है। तो अगर जो अक्यूज है वो कहता है कि घर के पीछे उस पर्टिकुलर फ्लावर पॉट में चाकू छुपाया है, तो मैंने मारा और मैंने वो चाकू वहाँ छुपाया, इफ दैट इज व्हाट द अक्यूज्ड इज सेइंग। तो इसमें वेयर द अक्यूज्ड इज सेइंग दैट ही हैज किल्ड XYZ पर्सन, ये जो पार्ट है ये एडमिसिबल नहीं होगा। मगर जहाँ पे वो ये बता रहा है कि द नाइफ इज हिडन अंडर दैट पर्टिकुलर पॉट और इनसाइड दैट पर्टिकुलर फ्लावर पॉट, तो उतना पोर्शन जो है वो एडमिसिबल होता है, राइट। और ये चीज़ आती है सेक्शन 27 में। जो इस केस में हुआ है वो भी सेक्शन 27 का ही तरीका है समझने का, और इसको कहा जाता है कन्फर्मेशन थ्योरी। अब कन्फर्मेशन थ्योरी क्या है जिसके बारे में कोर्ट ने इस केस में बात की है। So the court held that recovery of an article from a place hereto unknown to anybody else, including investigating officer, is a fact which underlines the confirmation theory, which is at the heart of the provisions of Section 27 of Indian Evidence Act. The discovery of facts includes not only the object found, but more importantly, the place from which it was produced and the knowledge of the accused as to its existence. कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि ये जो रिकवरी हुई है, उसने बोला कि यहाँ पे एक्स छुपाई है, वहाँ पे गए ऑफिसर्स और उन लोग को एक्स मिली। वो ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी और को नहीं पता था। इट्स नॉट लाइक कि उसी घर में कहीं छुपाया गया, किसी बहुत अलग जगह पे जाके उसने छुपाया, एंड ओनली ही न्यू कि वो कहाँ पे है। प्लस जो डिस्कवरी हुई है, जब वो गए तो वहाँ पे उनको वो एक्स मिली, द ऑब्जेक्ट इज फाउंड। इसका मतलब है कि जो अक्यूज है उसको नॉलेज है इस बात की कि मार के वो जो एक्स है वो वहाँ पे रखी गई है या छुपाई गई है। इसको कहते हैं कन्फर्मेशन थ्योरी। कन्फर्म हो रहा है कि जो अक्यूज है उसको नॉलेज है, ठीक है। डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा देखें। The doctrine is founded on the principle that if any fact is discovered in a search made on the premise of any information obtained from the accused while in custody, such a discovery is the guarantee that the information supplied by him is true. तो क्या कह रहा है ये इस डॉक्ट्रिन में कि अगर सर्च किया गया और जो अक्यूज्ड है वो जब कस्टडी में है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया और उसने बताया कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहाँ पे छुपा हुआ है या कहाँ पे मिलेगा, और जब ढूंढा जाता है तो वहीं पे डिस्कवर होता है। ये जो डिस्कवरी है, एक बार जब ये मिल जाता है, वो डिस्कवर होता है उसी जगह पे जहाँ आपसे बताया, ये गारंटी है उस इंफॉर्मेशन की कि वो जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वो इंफॉर्मेशन सच है, कंफर्म हो जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट केस इज नीलम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगेन दिस इज इलाहाबाद हाई कोर्ट्स केस। नाउ बेंच किसकी थी? जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरे की। नाउ फैक्ट्स क्या थे इस केस के? तो अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस केस के।
जहाँ पे जो पेटिशनर था उसने हेबियस कॉर्पस की पेटिशन डाली. नाउ हेबियस कॉर्पस इज व्हाट? व्हेन यू आर आस्किंग द बॉडी टू बी प्रेजेंटेड. तो ही वाज आस्किंग द कोर्ट कि उसकी वाइफ को कोर्ट में बुलाया जाए. क्यों बुलाया जाए? बिकॉज ही वाज सेइंग कि उसकी वाइफ को पकड़ के ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स ने अपने घर पे रख लिया है. अच्छा, टू प्रूव कि ये उसकी वाइफ है, उसने आर्य समाज ने जो सर्टिफिकेट दिया था, आर्य समाज के सामने शादी हुई एंड वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, आर्य समाज वाले, वो सर्टिफिकेट और कुछ फोटोग्राफ्स उस वेडिंग की, ये दो चीज़ें प्रेजेंट की टू प्रूव कि वो जो है उसकी लीगली वेडेड वाइफ है पेटिशनर की. नाउ द वुमन हरसेल्फ, जिसको वाइफ कह रहा है, शी डिस्प्यूट्स द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज. वो कहती है कि ये मैरिज वैलिड है ही नहीं, और अपने स्टेटमेंट में वो डिनाई करती है कि मुझे किडनैप नहीं किया गया, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं हटाया है. आई वॉन्ट टू स्टे विद माई पेरेंट्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विद दिस पर्टिकुलर पर्सन हु सेज ही इज़ माई हस्बैंड. देयर इज़ नो वैलिडिटी ऑफ द मैरिज एंड देयरफॉर आई एम नॉट द वाइफ. ठीक. अब इशू क्या आता है? इशू इसमें यह है कि आर्य समाज जो मैरिज सर्टिफिकेट्स देता है वो गलत होता है. दे कैन नॉट इशू मैरिज सर्टिफिकेट्स. ये बात हाई कोर्ट्स ने कई बार कही है कि उनके पास कोई सैंक्टिटी ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर करें. दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट करती है. एंड आप कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर वो कितनी ट्रस्टेड है, वो ये काम नहीं कर सकती. इसी पे the court has said the court has flooded with the marriage certificates issued by different Arya Samaj societies, which has been seriously questioned during different proceedings before this court as well as by other high courts. The said institution has misused their beliefs in organizing the marriages without even considering the genuineness of documents, and since the marriage has been registered, therefore only on the basis of the said certificate it cannot be deemed that the parties have married. कोर्ट ने बोला कि कई बार बोला जा चुका है कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, वैलिड नहीं है. सो इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस मैरिज सर्टिफिकेट, इट डज नॉट प्रूव दैट यू आर मैरिड. इस डॉक्यूमेंट का कोई जेन्युइननेस नहीं है और इसके बेसिस पे ये नहीं कंक्लूड किया जाएगा कि द टू पीपल आर मैरिड. The petition was obviously dismissed by the court, by the Supreme Court, by the High Court. And what did the court further say? In the present case, the corpus is a major. Corpus means the wife, the claimed to be wife. The corpus is a major and is residing with her parents of her own will. And she has already given a statement to the police authorities that she does not want to live with the petitioner, number 2, which is the husband in the case. Therefore, there is no case of writ of habeas corpus, right? तो कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया. The important point is कि आर्य समाज is not having any authority to issue marriage certificates. Now, K Paramasivam, I'm sorry for the pronunciation, versus Karur Vyas Bank Limited. अब ये इसमें क्या बेंच थी? जस्टिस इंद्र बैनर्जी एंड जस्टिस महेश्वरी. इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन था वो ये था कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, ठीक है, जो कि किसके अंदर इनिशिएट होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 7 में. ये क्या इनिशिएट किया जा सकता है अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट गारंटर, जो इंसान गारंटी दे रहा है उसके अगेंस्ट हम CIRP शुरू कर सकते हैं विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोवर. जिस इंसान ने हमसे पैसे लिए हैं, हम उसके खिलाफ केस ना करके उस इंसान के अगेंस्ट CIRP इनिशिएट करना चाहते हैं जिसने गारंटी दी थी दैट माई मनी विल कम बैक टू मी, राइट? सो लेट्स रीड. अंडर सेक्शन 7 of IBC, corporate insolvency resolution process can be initiated against a corporate entity who has given a guarantee to secure the dues of non-corporate entity as a financial debt accrues to the corporate person in respect of the guarantee given by it once the borrower commits default. Borrower ने जब default commit कर दिया तो CIRP against the corporate entity जो कि उसका guarantor थी, उसके against शुरू हो सकता है कि नहीं. This is the main issue.
Now, what did the court say? Court said that as it has been held by this court, that is Supreme Court, in Lakshmi Pad Surana versus Union Bank of India, the liability of the guarantor is coextensive with that of the principal borrower. जो गारंटर है उसकी सेम लाइबिलिटी होती है जैसे कि प्रिंसिपल बोरोवर की. यू कैन नॉट से कि प्रिंसिपल बोरोवर की गारंटी, जो प्रिंसिपल बोरोवर की लाइबिलिटी है वो गारंटर से ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ही इज़ द वन हु हैज़ टेकन मनी. इसलिए आप पहले इसके अगेंस्ट CIRP इनिशिएट करो, फिर हमारे अगेंस्ट करना द गारंटर. यू कैन नॉट से दिस. प्रिंसिपल बोरोवर के अगेंस्ट करें या गारंटर के अगेंस्ट करें, सेम बात है, इसलिए क्योंकि सेम लाइबिलिटी है इन लोग की. यू कैन नॉट से कि प्रिंसिपल बोरोवर की लाइबिलिटी ज़्यादा है. दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल विच कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का भी यही हम लोग का प्रिंसिपल है. The judgment in Lakshmi Pant Surana, rendered by a 3-judge bench of this court, is binding on this bench. It was open to the financial creditor, जिस इंसान ने पैसे दिए, the creditor, to proceed against a guarantor. वो जिसने गारंटी दी उसके अगेंस्ट प्रोसीड करे for CIRP विदाउट सुइंग द प्रिंसिपल बोरोवर. प्रिंसिपल बोरोवर को सुना करके वो सीधे गारंटर को सू कर सकते हैं या CIRP इनिशिएट कर सकते हैं. नाउ कम्स Shavani Ponusami versus Ministry of Civil Aviation. I am very sorry for any pronunciation which goes wrong. Bench किसकी है? Justice Abdul Nazir and Justice Rama Subramanian, right? अब इसमें क्या बात हुई थी? So basically जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, right? तो एक तरीका क्या है कि FIR क्वैश कराई जाती है. एक तरीका ये है कि the issue is resolved outside the court as per the offense. जो offense compoundable है वो compound हो जाता है और उसके हिसाब से उसके बाद जो parties हैं they move to the court and they say कि भाई जो हमारा केस था वो हम लोग ने solve कर लिया है, we have compounded it and you may please quash the proceedings. This is one way. Now there's another way, which is कि section 482 and और section article 226 यानी कि हाई कोर्ट जाके और जो पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसे आप क्वैश कर दीजिए क्योंकि हमने सेटलमेंट कर लिया है. ये मोस्टली तभी होता है जब जो केस है ना वो कंपाउंडेबल नहीं होता है. बिकॉज इफ अ केस इज कंपाउंडेबल एंड इट इज कंपाउंडेड तो you don't need to come under section 482 or article 226, right? ये तब होता है जब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं हैं और फिर भी आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि thus it is clear from the march of law that the court has to go slow even while exercising jurisdiction under section 482 or article 226 of the constitution in the matter of quashing criminal proceedings on the basis of a settlement reached between the parties. Even अगर settlement reach हो गया है between the parties and वो लोग आके कह रहे हैं कि हमारी criminal proceeding को quash कर दो, even then the court should go slow. Go slow in the sense कि उन्हें फिर भी बहुत ध्यान से case को quash. Why? When the offences are capable of having an impact not merely on the complainant and the accused but also on others. अगर जो offense है उसका जो impact है वो सिर्फ complainant और accused पे नहीं और लोगों पे भी है क्योंकि हम लोग criminal law की बात कर रहे हैं and criminal act is what? It is essentially an act against the society. So you are affecting society at large. Plus you may be directly affecting more people, not just the complainant and the accused. तो अगर आप कोई भी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वॉश कर रहे हो क्योंकि उन दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया है तो भी द कोर्ट्स हैव टू गो स्लो. निटिग्रिटीज को देखना है, समझना है और ये देखना है कि क्या ये क्वॉश होना भी चाहिए बिकॉज देयर माइट बी दैट देयर आर मोर पीपल दैन जस्ट दीज टू पीपल being affected or just these two parties who are being affected by whatever offense has taken place. So that's all. Thank you so much for this, going through the whole video and let's see you next week. Hope to, have a good week ahead. Bye-bye and take care.